Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 8th June 4:30 p.m. and today we are back again with another learning video. So this won't be any regular analysis video or chart video, right? Which we as usual release daily at around 7 to 9 p.m. But this will be part second of psychology and mindset points you need to remember in order to become or for being a profitable trader, right? So in part first we discussed in detail each and every point from 1 to 5, right? And we decided to keep this video in two parts, right? So in this video we'll discuss the remaining points, and in detail we'll get to know that from I think mindset point of view, from psychology point of view, what things you need to take care while you are punching a trade or you are currently in a trade, right? So I think the agenda is clear of this video. So without consuming any more time, we'll straight jump to our discussion, right? So as I've already mentioned, I've already discussed the first 5 points, and I'll give the link to that video at the end of this video or even at the starting of this video. You can click on the upper top right section of this video and access the first part, right? And I'll recommend that first you watch that part one of this video, and then come and watch this second part. You will be able to relate more with the upcoming points if you have seen the part first of this video, right? So without any delay, let's start with the sixth point. And as you can see on the screen, right, I hope you are able to see the points which I've mentioned. The sixth point says that you should not trade every day, trade when the smart money trades. So इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो, आपको योर सोल फोकस फ्रॉम ट्रेडिंग, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आर अर्लियर पॉइंट्स, दैट आपको एक दिन में 1 लाख का 10 लाख नहीं बनाना है. दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग इज, राइट? इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली मेकिंग 1% अ डे और 5% अ डे और 5% अ वीक, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ सफिशेंट. सी, अगर आप हर दिन 10% बना रहे हो ना, जो आई थिंक ऑन एन एवरेज 5%, तो आपको डीके ही मिल जाता है अगर विक्स 15-16 का चल रहा है तो. सो इवन इफ यू आर मेकिंग 3 to 4% अ डे, दैट इज इनफ इन अराउंड. इफ यू आर ऑन एन एवरेज यू आर मेकिंग 5% अ डे, आप करीब करीब 3 से 4 महीने में अपना कैपिटल डबल कर लोगे. अगर आप नेगेटिव ट्रेड्स भी काउंट करते हो तो 6 to 8 मंथ्स में यू विल बी एबल टू डबल योर अकाउंट. बस यही पॉइंट लोग नहीं समझते, एंड लोगों को क्या होता है, 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो एफ एन ओ ट्रेडर्स हैं, डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं इंडिया में, वो लॉस में है. और उनका क्या साइकोलॉजी रहता है कि हमें हमारे पिछले 3 साल का लॉस हमें एक महीने में रिकवर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा. ऐसा होता ही नहीं है. द मार्केट्स आर नॉट बिल्ट लाइक दैट. एंड इवन इफ one day or 2 day you will get an opportunity like this, you will get into a delusion that हर दिन ऐसा होगा, and the day the markets will go opposite to you, you will end up losing your रिमेनिंग कैपिटल, राइट? सो इस लूप में मत फंसो कि हमें हमारा 3 साल का लॉस 3 महीने में रिकवर करना. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप कर भी लोगे, मैं आपको बताता हूँ, यू विल बी एबल टू रिकवर. अगर आपने कर भी लिया ना, वो मनी आप रिटेन नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन दैट मनी, क्योंकि जो आपने प्रोसेस अप्लाई की, वो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने आपको 6 महीने में, 12 महीने में मार्केट टॉट यू इन रिकवरिंग दैट मनी. नो, मार्केट डिडंट टीच यू, करेक्ट? आपका लक था, आपका उस दिन व्हाट यू कैन से इज योर डे वाज गुड, राइट? कि आपने जो एंटिसिपेट किया, व्हाट यू एंटिसिपेटेड, मार्केट एग्जैक्टली हैपेंड लाइक दैट. बट एवरी डे इज नॉट अ संडे, राइट? हर दिन आप जैसा सोचोगे वैसा नहीं होता. एंड स्पेशली इन स्टॉक मार्केट्स, इन ट्रेडिंग, जनरली व्हाट यू थिंक डज नॉट हैपन, राइट? 80 to 90% आप कभी ऑपरेटर माइंडसेट, जो स्मार्ट मनी माइंडसेट है, वो आप अगर एज अ रिटेलर आप ट्रेड कर रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ स्मार्ट मनी, राइट? सो 6 पॉइंट का मतलब यही है कि आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है. As I every time repeat in my videos that the markets or moves, like in context of trading, the markets move in a particular structure. There will be trending move, then there will be distribution, and then there will be trending again. So this distribution phase is called sideways phase. So in this sideways or distribution phase, option sellers earn most of the money. And since only 10% of the traders are option sellers, they control the market इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन फेज. सो हम रिटेलर्स गलती क्या करते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी हम वन डायरेक्शनल का ट्रेड सोचते हैं कि यार मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो हमारी ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए, एंड वी ट्रेड एवरी डे.
हम हर दिन सोचते हैं कि हम हर दिन 1,000 रुपये बना लें, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एक दिन दो दिन ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगा, बट उसके बाद आपको at least for 2 to 3 days you will have to face a sideways market and you will have to be prepared. So the context of this point is not every day is tradable. आपको लगेगा ऑन द लाइक बिगिनिंग ऑफ द डे 9:30 9:40 p.m. You'll feel that oh, today the markets can be trending, or the today the markets can reverse, but it will not, right? On a particular day, like in a like let's suppose there are 5 trading sessions, तो उसमें से दो या तीन ट्रेंडिंग मिलेंगे आपको, बाकी के बचे हुए दो या तीन आपको साइडवेज ही मिलेंगे. सो इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू ट्रेड एवरी डे, एंड जस्ट ट्रेड व्हेन द स्मार्ट मनी ट्रेड्स. अब मैं इसको ना एक बार स्मार्ट जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैं इसको आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ, चार्ट्स पे प्रूव करता हूँ. तो आई होप आपको चार्ट्स की स्क्रीन दिख रही हो बैंक निफ्टी की, राइट? देखो एक बार ये जो सारी ड्राइंग्स है, आई डिलीट दिस ऑल दिस ड्राइंग्स, राइट? एंड आई मेक यू एक्सप्लेन दैट व्हाट एग्जैक्टली आई मीन, दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रेड एवरी डे. देखो सी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया, जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे एग्जिट किया, उसने बना लिया पैसा. अब अगर वो ये भी सोचे कि एक और ऐसा मूव आ जाए, तो ऐसा होगा? नहीं होगा ना, मार्केट में नहीं हुआ, और ऐसा हर बार हुआ है, राइट? आप देखो यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे किया, फिर चलो ये मूवमेंट आ गया, लोगों ने पैसा बनाया होगा, वन सिचुएशन. देखो अब यहाँ पे ट्रेंडिंग आया, बट इतने पूरे फेज में क्या मार्केट ने ऐसा मूव दिया? नहीं. और पीछे चलते हैं, देखो ये ट्रेंडिंग आया, बट ये जो पूरा मूव था, इसमें किसी का पैसा नहीं बना होगा, सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का पैसा होगा, बना होगा, बता रहा हूँ. क्योंकि आप क्या करोगे, आपको लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, गया भी, और फिर इमीडिएटली मार्केट नीचे आ गया. तो यहाँ पे जितना आपने प्रॉफिट कमाया ना, ऑप्शन बाइंग ऐसी होती है, ऊपर जाने में आप जितना पैसा कमाते हो, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आ गया, वो पूरा का पूरा पैसा वापस निकल जाता है. तो इसलिए बोलते हैं कि टू मिनिमाइज योर लॉसेज यू शुड नॉट ट्रेड एवरी डे. ट्रेड जब करो जब आपको बहुत सर्टेनिटी हो कि हाँ भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा. अब देखो यहाँ से मार्केट गया, लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे के दिन, येस्टरडे व्हाट हैपेंड इज, मैंने ये पूरा मूव ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि मैंने इस पूरे पार्ट में बहुत पैसा कमा लिया था, और मेरा सेटअप नहीं बैठ रहा इसके साथ, तो वाई वुड आई ट्रेड एवरी डे, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रेड. अच्छा, अब इस ट्रेड में भी क्या होगा, बैंक निफ्टी में तो पैसा बना ही नहीं. आप जाके ऑप्शंस देख लो, 3 दिन पहले का, 4 दिन पहले का, जितना पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी मूव किया, उतना तो प्रीमियम्स मूव ही नहीं किए. सो आप अगर यहाँ से बाय करके भी रख दोगे ना कॉल ऑप्शन, प्रीमियम डी के आपका विक्स क्रैश होना, टाइम डी के आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट नॉट एवरी डे यू शुड ट्रेड. जैसे कि आप ये कहते हो ना कि यार हर दिन मज़े मारना ज़रूरी नहीं है, आप अपना काम करो, यू शुड वर्क हार्ड, बट ओके, इन अ वीक और 2 days इन अ वीक यू शुड एंजॉय, लाइक दैट द मार्केट्स आर ऑल्सो लाइक दैट. ओके, सो आई होप ये बात आपको समझ. और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या होता है, आप हर दिन एक्सपेक्ट करोगे ना मार्केट आपको कुछ दे दे, तो साइडवेज वाले दिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, एक ही रेंज में क्यों फंस गया है. So it is very crucial to understand the day when you have to trade and the day when you don't have to trade. And it is a very famous saying in the market, and I truly believe it. It is more important in the derivatives market to know when not to trade rather than when to trade. इस बात को प्रिंट करा के बड़ा बड़ा अपने पेन बोर्ड पे, अपने अलमारी पे, अपने डेस्क पे लगा लेना. इसको इस बात को ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप हफ्ते में 10,000 रुपये कमा रहे हो, आपने एक दिन में कमा लिया, योर वीक इज़ डन. नॉट नेसेसरी कि आपको आने वाले 4 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करना और हर दिन आपको मार्केट 10,000 रुपये देगा. आपको, आप क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, आपका वीक ऑन वीक क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है, आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है? बिकॉज यू आर इन अ हैबिट टू ट्रेड एवरी डे. देखो ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है उसके मीन रिवर्जन पे. सो आप क्या करते हो कि आपको, यू फील दैट ओके टुडे द मार्केट वेंट अप, but what is the surety, what is the guarantee that again for the next 3 days the market will go up? It might go up, but we do not know, right? It might come down also. सो इसका मतलब यही है कि हर दिन ट्रेड नहीं करना है, आप सिर्फ अच्छे दिन ट्रेड करो जहाँ पे आपका जो बनाया हुआ सेटअप है वहाँ पे वो एक्टिवेट हो रहा हो, जहाँ पे आपके पास एज हो, टाइम का एज हो, प्रीमियम्स का एज हो. अब कभी कभार क्या होता है, प्रीमियम्स लास्ट वीक ही होते, इतने महंगे प्रीमियम्स थे, हमने नहीं बाइंग की, वी डिड नॉट इवन टच द मार्केट्स, राइट? सो और उस दिन मैंने दिखाया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि देखो हमने ट्रेड नहीं किया, बैंक निफ्टी गया ऊपर 300 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन रेड में बंद हुआ है, कर लो ट्रेड, कर लो ऑप्शन बाइंग. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि ऑप्शन बाइंग अगर आप
क्योंकि 90% लोग ऑप्शन बायर होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड एवरी डे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच हो गया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू यू गाइज एज ट्रेडर्स की every day should not be traded. Coming to seventh point, 10% a month is sufficient to double an account in 7 days, 7 months, not days, 7 months. See, अगर आप 10% एक महीने में बनाते हो, मंथ ऑन मंथ अगर आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, लेट्स सपोज आपकी 1 लाख कैपिटल है, आपने इस मंथ 10% बनाया, सो योर कंपाउंडेड कैपिटल विल बी 1,10,000। नेक्स्ट महीने आपने बनाया 10 to 12%, योर कंपाउंडेड कैपिटल विल बी 1,21,000 और 22,000। कंपाउंडेड अपना पैसा बनाते जाओ, ऐसा नहीं है देखो आपका, इफ़ यू हैव अ cumulative loss of let's suppose 4 lakhs, do not ever think that you can recover that 4 lakh loss in span of 4 months, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जितना इजी होता है ना, जितना डिफिकल्ट होता है उतना इजी होता है पैसा गंवाना। क्योंकि वी आर फाइटिंग विद मशीन्स, वी आर फाइटिंग विद द पीपल जो टॉप पे है, जिनके पास हमारे पास 100x 1000x मनी है। हम तो 1 लाख के कैपिटल पे है ना, हम उनको बीट कर सकते हैं जो जो जिनके पास 10 करोड़ का कैपिटल है, 100,000 करोड़ का कैपिटल। नो, वी कैन नॉट बीट, राइट? वी जस्ट हैव टू फॉलो देम। दैट्स वाई इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 0 to 100 ट्रेड नहीं ले सकते, आप 20 पे ट्रेड स्टार्ट करो और 80 पे बुक करो, राइट? सो 10 और इस ये क्या है कि ये देखो, ये पॉइंट हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ट्रेडिंग, राइट? तो आपका एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एक दिन में 400% रिटर्न चाहिए। एक दिन हो जाएगा, बट अगले 5 दिन वो 400% खींच लिया तो इसलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। दैट्स द मेन रीजन यू आर नॉट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, राइट? बिकॉज यू थिंक दैट markets are built to give you like 60-70% returns every day. No, they might give you, but operators आपके साथ खेलते ही इस तरह है, they'll make you believe कि मेरा रोज पैसा बनेगा। वो आपको 3 दिन तक लॉलीपॉप दिखाएंगे कि देखो कॉल जा रहा है जा रहा है, चौथे दिन इतना बुरा फॉल आएगा कि वो तीनों दिन का गेन 1 घंटे में रिकवर हो जाएगा, एंड आप ऊपर कॉल लेके बैठे होगे और आप ट्रैप हो जाओगे। दैट्स वाई इट इज नॉट एडवाइज टू ट्रेड एवरी डे, एंड you need to be clear on your expectations from the market. So 10% a month is very good. 5% a day, 2% even 1% a day पे आप अगर लगाओगे ना कंसिस्टेंटली, 72 days में आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। एंड इवन इफ यू ऐड नेगेटिव डेज, यू टेक 100 days, राइट? सो एवरी डे अगर आप 1% भी बना रहे हो ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर 72 days में, चलो 100 दिन में, 100 दिन कितना होता है? 1/3 ऑफ द ईयर, राइट? Around 5 months, near to 4 to 5 months, राइट? 4 months हो गए, तो 4 months में अगर आप 1% पर डे के हिसाब से बना रहे हो, तो इट इज दोज रिटर्न्स आर मोर देन सफिशिएंट। आपको और क्या चाहिए? अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आप यू कैन नॉट सस्टेन इन द मार्केट्स, बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर देन दैट, देन आई थिंक यू विल नॉट बी इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट में सस्टेन वो कर पाता है जिसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे को 5% डे पे मेरे को ख़त्म करनी है कहानी। अगर मेरे को 1 लाख कैपिटल पे आज का मेरे को 10% मिल गया, 10,000, मेरा हफ्ता ख़त्म हो गया, मेरे को नहीं ट्रेड करना। और अगर करना दिया तो पूरे कैपिटल पे मत लो, आप अपने प्रॉफिट पे रिस्क लो, फिर आप 10,000 का ही ट्रेड ले सकते हो, आप 1 लाख पे ट्रेड नहीं कर सकते, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेवर प्रेडिक्ट और क्रिएट अ बायस इन द मार्केट्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशल पॉइंट, जो बहुत लोग जहाँ पे फंसते हैं। क्या करते हैं कि उन्होंने एनालिसिस कर लिया, दे हैव डन द एनालिसिस, द चार्ट्स ओपन, एंड बिफोर इवन स्टार्टिंग द मार्केट they have their bias that today will the market will go down, right? Today the market can bounce up to 100 points, it might or it might not, you do not know, राइट? क्योंकि ऑपरेटर्स के मन में क्या पता चल रहा हो कि मेरे को तो यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर लेके जाना है, फिर वहाँ से 5,000 पॉइंट ड्रॉप कर रहा है, तब आप 1,000 पॉइंट में ट्रैप हो जाओगे, आप ऊपर निकालोगे, वहाँ से नीचे आ जाएगा मार्केट। ऐसा ही होता है ना। यू आर इन अ कॉल ऑप्शन, दैट कॉल ऑप्शन फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल बिकॉज योर एंट्री वॉज रॉन्ग, राइट? दैट the price of that call option falls to a certain level, you panic and you exit, and the moment you exit, just because your entry was wrong, the moment you exit, that shoots up double than your buying price. डज इट हैपन विद यू ऑल्सो? मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मेरे इनिशियल ईयर्स में मैं ऐसे ट्रेडिंग लूप में फंस गया था। मैं खरीदता था, जहाँ पे खरीदता था वहाँ से नीचे गिर जाता था, फिर लगता था कि नीचे आ रहा है तो मैं पुट बाय कर लेता था, और जहाँ पुट बाय करता था वहाँ से ऊपर चल जाता। तो वाई डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज हम एक मार्केट में प्री बायस लेके आते हैं कि मार्केट आज ऐसा ही करेगा, और मार्केट नहीं करता ऐसा।
जो 90% रिटेलर सोचते हैं मार्केट उसका हमेशा उल्टा करेगा, क्योंकि द बिग प्लेयर्स नो द स्मॉलर स्मॉलर प्लेयर्स पोजिशंस, उनको मालूम है, हमें भी बड़े प्लेयर्स की पोजीशन मालूम है, एफ आई एस को, डी आई एस को रिटेलर्स की पोजीशन मालूम होती है। तो जब तक रिटेलर्स आपको लिक्विडिटी दे रहे हैं, जब तक वो बाइंग में है, एफ आई बेचते जाएगा। अभी आप देख लो, रिटेलर्स पिछले पूरे वीक बेरिश रहे, मार्केट पूरा चढ़ गया ऊपर। तो जब तक रिटेलर्स बुलिश रहेंगे, तब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कंसिडर योर सेल्फ एज अ नॉन रिटेलर। आपको जब ट्रेड करना है, जब स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहा हो, व्हेन एफ आई एस आर बुलिश यू हैव टू बी बुलिश, राइट? Coming to the eighth point, coming to the ninth point, markets are designed to trap retailers. Algos will trap you. Up now, this is one of the points which I've learned in past 1.5 year. I'll explain you, right? So what it means is, देखो अब पहले क्या होता था कि मैनुअल ट्रेडिंग होती थी, जैसे हम सिस्टम खोलते हैं, हम कंसोल पे गए, हमने ट्रेड पंच की खत्म। अब व्हाट बिग प्लेयर्स, व्हाट एच एफ टीज क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं, उनके पास एक प्री डिजाइंड सेट ऑफ कोड होता है, एंड वो कोड उनके लिए ट्रेड पंच करता है। और वो कोड किस बेसिस पे ट्रेड पंच करता है? जो ओ आई डेटा बन रहा है, जो रिटेलर्स की पोजीशन से उनके ऑपोजिट जाने के लिए, क्योंकि देखो बिग प्लेयर्स नीड लिक्विडिटी, कोई खरीदने वाला है तो बिग प्लेयर्स, फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जिनके पास 10 करोड़ 100 करोड़ का कैपिटल है, वो नेकेड बाइंग कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको मालूम है रिस्क बहुत है। वो करते हैं सेलिंग, राइट? और सेलिंग को क्या चाहिए होती है? लिक्विडिटी। और उनको मालूम है कि इंडियन मार्केट में इतने स्टूपिड ट्रेडर्स हैं कि मतलब उनको एट द मनी पे अगर 400-500 रुपये पॉइंट का प्रीमियम चल रहा होगा ना, वो जाके खरीद लेंगे। उनको यही नहीं पता कि मार्केट अगर यहाँ से 400 पॉइंट शूट भी कर गया ना, तो भी उस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, तो वो उस पॉइंट पे बेचते रहते, एंड रिटेलर्स उसको खरीदते रहते हैं, राइट? सो ये एक ट्रैप होता है। एंड जो एल्गोज बनाते हैं बड़े प्लेयर, जैसे आपके ये गोल्डमैन शास, जितने भी एफ आई एस डी आईज है, ये आपका एल आई सी हो गया, डी आई है, तो इनके एक सेट ऑफ कोड होता है, ये कंप्यूटर में कोड कर देते हैं कि जब तक हमारा रिटेलर खरीदते जाएगा हम बेचते जाएंगे, जैसे रिटेलर बेचने लगेगा हम खरीदने लगेंगे। एल्गोज डिफाइन ही होते हैं आपको ट्रैप करने के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्मार्ट मनी कब ट्रेड कर रहा है, और हमेशा आपको ये एफ आई आईज और रिटेलर्स का डेटा ओपन रहेगा। रिटेलर्स की जो पोजीशन है 90% ऑफ टाइम मार्केट उसके अपोजिट जाएगा। लिख के ले लो आप मेरे से, ठीक है? कीप एन आई ऑन द वॉल्यूम, द लास्ट पॉइंट, कीप एन आई ऑन द वॉल्यूम। इसको मैं आपको एक उस पर चार्ट पे दिखाने का ट्राई करता हूँ, राइट? निफ्टी हमेशा, आप अगर ट्रेड कर रहे हो ना, मेक इट अ हैबिट टू फॉलो द फ्यूचर्स, ठीक है? कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि फ्यूचर्स, स्पॉट में क्या है, वॉल्यूम नहीं होती, बट फ्यूचर्स में वॉल्यूम दिखता है। एंड अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि मार्केट मान लो विदाउट वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, तो वो फेक फॉल है। और अगर विदाउट वॉल्यूम मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो फेक राइज है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन वाई, ठीक है? ये देखो, ये हैवीएस्ट वॉल्यूम था, यहाँ पे अच्छा पैसा बना बेयरिश ट्रेड में, राइट? अब देखो यहाँ पे इस पूरे पार्ट में वॉल्यूम कितनी अच्छी है, तो मार्केट जा रहा है ऊपर। बट वॉल्यूम ये जो रेड वॉल्यूम है इसके बराबर है नहीं है, इसका 1/4 है। देर इज़ अ हाइयर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। एंड आपको जो डी एफ आई है, डी आई है, वो आपको स्पॉट प्राइस से तो कर सकते हैं ट्रैप, बट वॉल्यूम से कभी नहीं ट्रैप कर सकते। जहाँ पे वॉल्यूम आ गया ना हैवी, मतलब समझ लो वो रियल मूव है, वहाँ पे आप ट्रैप होने की आपकी प्रोबेबिलिटी कम है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया। ये देखो, मार्केट आया नीचे, आर्ली पे बता रहा हूँ मैं, ये आया नीचे, बट ये दो रेड कैंडल स्टिक्स की आप वॉल्यूम देखो कितनी कम है, इवन लेस देन द वॉल्यूम ऑफ प्रायर ग्रीन कैंडल स्टिक, जो ये वाली वॉल्यूम है। एंड अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, रुको मैं एक बार आपको डूडल से आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये डाउन मूव आया दो कैंडल स्टिक का, ठीक है? ये दो कैंडल स्टिक का डाउन मूव आया, बट यहाँ पे वॉल्यूम देखो, देख रहे हो वॉल्यूम आप? ये दो कैंडल स्टिक की वॉल्यूम देखो कितनी कम है, इतनी कम है कि ये वाली जो ग्रीन कैंडलस्टिक है वो भी नहीं, उसकी भी वॉल्यूम वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और जैसे ये कम वॉल्यूम में मार्केट ने प्रायर आर ले लो तोड़ा, हमें यहाँ पे ये समझना है कि यार वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो ये फेक फॉल है। एंड द नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रॉब्ली कैंडलस्टिक बहुत बड़ा रिवर्सल हो सकता है, और वो आ भी गया, राइट? ये तो था, ठीक है, चलो मार्केट गिरा। अब मार्केट, एक बार देखते हैं कि मार्केट ने फेक अपमूव कब दिया है। मैं बताता हूँ, देखो अगर हम इस पॉइंट पे देखें ना, जहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आया, सी यहाँ पे ये चार्ट है, मैं वॉल्यूम का थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ये देखो
इस पॉइंट को क्रूशियली फॉलो करो। ये जो आपकी बाइंग कैंडलस्टिक है, इसकी वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये वाली ये कैंडलस्टिक कितनी कम वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम इससे भी कम है, प्रायर ग्रीन कैंडलस्टिक से भी कम है। अगर ये वॉल्यूम कुछ ऐसी होती तो इट वुड हैव बीन अ रियल मूव, राइट। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर कंटिन्यू कर जाता। दैट्स, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो तो वॉल्यूम पे फोकस रखो। अगर वॉल्यूम है तो वो प्रॉब्ली मूव रियल होगा। इफ द वॉल्यूम इज नॉट देयर, बिना वॉल्यूम के मार्केट गिर रहा है या कोई भी स्टॉक, एंड दिस अप्लाइज टू इवन स्टॉक, स्टॉक का जाके वॉल्यूम देखो, अगर बिना वॉल्यूम के गिर रहा है तो प्रोबेबली रिवर्सल आएगा और वो स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट। तो बड़े प्लेयर्स एफ आई एस कैन फूल यू विद प्राइस बट दे कैन नॉट फूल यू विद वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आता है तो बड़े बड़े ट्रेडर्स उसमें एंटर होते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ लास्ट 5 पॉइंट्स ऑफ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो ये 10 पॉइंट्स को एक पेपर पे प्रिंट आउट करके आप निकाल के अपने नोटिस बोर्ड पे या जो भी आपका अलमारी है, आपका डेस्क है, उस पर लगा लो। एंड यू हैव टू कीप all these 10 points in your mind before even punching a single trade. वही, that's only and only that's called discipline. If you are maintaining, if you are following all these 10 principles before punching a trade, before getting into trading, before entering into a trade, whether it's a 10,000 trade, whether it's a 10 lakh trade, आई एम गारंटिंग यू, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आपके लॉसेस 90% तक कम हो जाएंगे अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो। सो दैट वाज इट ट्रेडर्स, आई थिंक इट्स अ 21 मिनट्स लॉन्ग इट्स वीडियो। आई होप द फर्स्ट पार्ट, यू विल सी द फर्स्ट पार्ट, एंड आई होप कि ये जो 10 पॉइंट्स मैंने एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस विल help you in moving towards a direction of profitable trading. Yes, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि इट्स अ गैम्बल, नो इट्स नॉट अ गैम्बल, आई एम डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 4 years, इट्स नॉट अ गैम्बल। अगर आप ट्रेडिंग का साइंस, आप मैथमेटिक्स, आप नंबर समझ गए, सो इजीली यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रोवाइडेड यू नीड टू फॉलो द डिसिप्लिन, यू नीड टू फॉलो दिस 10 पॉइंट्स। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही 10 पॉइंट्स है, देर विल बी मोर देन 100 पॉइंट्स, बट ये जो मैंने पिछले 3 साल में जो एक्सपीरियंस किया उसके टॉप 10 पॉइंट्स हैं। आपको अगर जो फील होता है कि आपने, आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इन पॉइंट्स के अलावा भी आपको क्या लगता है कि वो पॉइंट्स हमें फोकस ध्यान में रखने चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, राइट। आई होप ट्रेडर्स आई एम एबल टू हेल्प यू in your path to become a profitable trader, right? And be safe in the markets, traders. Thank you.